difficulty in seeing in dim light or low light. He reports frequent stumbling at night, struggle to drive in the evening. On examination, conjunctival dryness and bitter spots are noted. Explain the biochemical role of vitamin A in vision and how does its deficiency leads to what? Night blindness. Describe the structure of rhodopsin and its involvement in phototransduction. What are the enzymatic steps involved in the conversion of beta carotene to active the vitamin A? How does the vitamin A deficiency affect gene expression and epithelial integrity? What biochemical test can be confirm a vitamin A deficiency? Biochemical role in vision. Vitamin A is oxidized to retinal, which forms the chromophore 11-cis retinal. 11-cis retinal binds to opsin to form rhodopsin, a crucial pigment in rod cells. Upon the exposure to light, 11-cis retinal isomerase to all-trans retinal, leading to activation of phototransduction cascade. Deficiency impairs the rhodopsin regeneration, leading to night blindness. Structure and function of rhodopsin. Rhodopsin consists of opsin, a G protein coupled receptor, and 11-cis retinal. Light absorption converts 11-cis retinal to all trans retinal, activating the G protein transduction. This cascade decreases the cGMP level, closing the sodium channels and causing the hyperpolarization of what? Rod cells. Function. Deficiency due to squamous metaplasia of epithelial cells causing dry conjunctiva, xerophthalmia and keratomalacia. Conversion of beta carotene to retinol. Beta carotene 1515- dioxinase in the intestinal mucosa cleaves the beta carotene into two molecules of retinol. Retinol is reduced to retinol by retinaldehyde reductase using NADPH. Retinol binds to retinol binding protein for transport in where? Plasma. Effects on gene expression and epithelial integrity. Retinoic acid, the active metabolite of vitamin A, binds to the retinoic acid receptors and retinoid X receptors. These receptors regulate genes expression in cell differentiation, keratinization, and immune function. Deficiency leads to squamous metaplasia of epithelial cells, causing dry conjunctiva, that is xerophthalmia and keratomalacia. Question can become which in deficiency of which vitamin there is metaplasia. Which vitamin? Yes. Vitamin A also help in the prevention of infection. It's formed in the help वो है ना epithelial layer जो है ना उसको formation में vitamin A help करता है, ठीक है ना. Like squamous metaplasia of epithelial cell नहीं लिखेगा, सिर्फ metaplasia दे देगा ना, simple terms में दे देगा. MCQ ये important है. मैं होऊंगा फिर से क्वेश्चन क्या तो दूंगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे जब मैंने बुक में पढ़ा. हिमेटोपोएटिक विटामिन कौन सा है? आज तो आया था ना. हाँ B9 and और क्या कौन लिख के आया है वो ठीक ठाक से? कंकना ने जागा एकदम ठीक जगह पे आंसर दे दिया. इधर नहीं दिया तो क्या हुआ? सर के सामने नहीं तो दिया क्या हुआ? देखते हैं कितना मिलता है कंकना को MCQ में. वो कोलाजन वाला दिया ना? नहीं दिया? इजी था ना, एक ही क्वेश्चन था वो मैंने किया था, वो कोलाजन वाला एक ही, बाकी सब इंपॉर्टेंट से क्यों दिया ना, एक ही था, इजी दिया. हाँ और चाहिए इजी. ठीक है, एडवाइस याद रहेगा और इजी दूंगा. Biochemical test for diagnosis: serum retinol levels, dark adaptation test and conjunctival impression cytology shows keratinized epithelial cells. हम लोग है ना ये टेस्ट कम ही करते हैं, क्लिनिकली ज़्यादा डायग्नोस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना. बिटर स्पॉट देखोगे, xerophthalmia देखोगे, उसको जब क्वेश्चन पूछोगे कि क्या आपको रात को देखने में दिक्कत होती है? हाँ होती है, ठीक है ना. आप जब रात को हटते वॉक करते हैं ना तब उसको ठीक से चल नहीं पाते, इधर उधर ठोकर लग जाती है, तो क्लिनिकल से हम पता लगा सकते हैं कि उसका विटामिन ए का डिफिशिएंसी है कि नहीं. ये तो लग्जरी है ना, ये केमिकल टेस्ट लग्जरी है. अगर आप फिर भी आपको श्योर होना है या फिर भी पेशेंट को कन्विंस करते हैं तो ये आप कर सकते हैं.
जैसे कि सीरम रेटिनॉल लेवल. A 60-year-old female with chronic pancreatitis presents with night blindness, dry skin, recurrent infections. Laboratory test reveals steatorrhea and low serum vitamin A. What is steatorrhea? Huh? Smelly? Why? Why smelly? It contains extra what? Yeah? Anyone else? Huh? Fat, sir, fat. Yes, fat. क्या क्या लॉन्ग टर्म बोलते हूँ. It contains basically what? निकाल दूंगा दोनों को, निकाल दूंगा. इधर मजाक चल रहा है क्या? एब्सेंट दूंगा और निकालूंगा भी और नीचे भी भेजूंगा. मजाक बन रहे हो क्या इसका? Why is the fat malabsorption associated with vitamin A deficiency? Describe the absorption as transport mechanism of vitamin A. How does the chronic pancreatitis affect vitamin A metabolism? What are the storage and mobilization mechanism of vitamin A in the liver? How do you biochemically manage this patient deficiency? Anyone? Fat malabsorption and vitamin A deficiency. Vitamin A is lipophilic. What is lipophilic? Anyone? Lipid? Breakdown. Requiring bile salts and pancreatic lipase for absorption. Steatorrhea leads to impaired micelle formation and reduced vitamin A uptake. Absorption, transport and transport of vitamin A. Retinol is absorbed in the duodenum. Esterified to what? Retinol is absorbed in duodenum, esterified to retinal esters and incorporated into chylomicrons. Chylomicrons transport the retinal esters to the liver via lymphatic system. In plasma, retinol binds to RBP and transthyretin for systemic transport. Effects of chronic pancreatitis. Pancreatic lipase deficiency leads to incomplete hydrolysis of what? Retinal esters. Malabsorption results in hepatic vitamin A depletion and defective rhodopsin what? Formation. Malabsorption results in hepatic vitamin A depletion and defective rhodopsin formation. Storage and mobilization from liver. Stored as retinal esters in hepatic what cells? What cells? Hepatic? Why लिखा है इधर? Mobilized via hydrolysis by retinal ester hydrolyzed when needed. Retinol binds to RBP and is secreted into circulation. Biochemical management. Parenteral vitamin A supplementation. Pancreatic enzyme replacement therapy to aid the absorption. Fat soluble vitamin supplementation with dietary modifications. Dietary modification पे क्या क्या खा सकते हैं हम? So vitamin D is very much important now. Lots of question. It is interrelated to phosphate, calcium and alkaline LP. Very much important. ये चारों पहले ए, उसके बाद डी, उसके बाद के, उसके बाद ई. तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ई को भी नहीं छोड़ सकते. तीन पढ़ के जाओगे ई लिख के दे दो, ई क्वेश्चन में आ जाएगा. Most likely the biochemical diagnosis is what? Vitamin D deficiency indicated by low level of what? Low level of 25 adverse vitamin D. less than 20 nanogram per which leads to hypocalcemia, hypophosphatemia and increased. These findings suggest secondary hyperparathyroidism due to vitamin D deficiency. लिखो. पढ़ाया नहीं था क्या लेक्चर हॉल में? हार्मोन सब तक फिजियोलॉजी में नहीं पढ़े? बताओ, आप बताओ क्या है? पढ़ा करो भाई, फिजियोलॉजी में तो है शायद. आप बोलो. सब रेडीमेड चाहिए नहीं मिलेगा भाई, मेहनत करो. मेहनत करा पूरा क्या? ये इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन में तो बहुत इम्पोर्टेंट है. ऐसे में मिलेगा सीओडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, सीओडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. बायोकेमिकल चेंजेस इन कैल्शियम, phosphate and LP. Low serum level, decrease intestinal calcium absorption due to क्या है इसका फुल फॉर्म?
hydroxy calcium. Anyone else? Hydroxycholecalcium. Low. D means vitamin D. Oh, ये तो बहुत बोल दिया तूने. डाई क्यों? दो है ना? दो है dihydroxy. और नहीं होता तो Hydroxy. सिंपल. लो सीरम फॉस्फेट एंड हाई एलपी. तो तीन चीजें देखना है. लो क्या रहेगा? लो सीरम कैल्शियम एंड देयर लो सीरम फॉस्फेट बट इंक्रीज इन एलपी का फुल फॉर्म क्या है? एल्कलीन. अरे बोलना, आंसर बोलना, गलती होने दे इधर. एल्कलीन. अरे जोर से बोलना. सही बोल रहे हैं कि नहीं पता नहीं. एलपी का फुल फॉर्म रेस्पॉन्स टू एंड यस इनहिबिटेड बाय एक फुल फॉर्म क्या बोला था? कौन सा ग्रोथ फैक्टर? बोल रहे हैं लोग, सुन के हम दे बोल दे. फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर सीक्रेटेड बाय ओस्टियोसाइट्स इन रेस्पॉन्स टू. ठीक है, लिखो. जो फॉर्म होता है कन्वर्शन के बाद, वो अगर हाई लेवल पे जाए तो खुद ही नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि बंद करो भाई, हो गया. मोलिकुलर बेसिस ऑफ muscle weakness and bone pain. Vitamin D deficiency leads to low 125 what? Decrease in the level of calvinin in where? Written है तो भाई यही क्यों आंसर दे रहे, बाकी लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे भाई? Impaired calcium homeostasis in muscle fibers, reduced excitation and contraction coupling, bone pain. Unmineralized osteoid accumulation causes microfractures. That is called. ठीक है, पता चल गया क्योंकि बोन पेन क्यों होता है. कंप्लेंट लेकर आएगा, देयर विल बी बोन पेन इन द शिन्स ना. कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं हो गया. कभी कभी ऐसा केस आएगा कि पेट में बहुत दर्द हुआ है अचानक से, ठीक है ना, क्योंकि एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा. leads to hypoglycemia. ऐसे बोलो, leads to hypoglycemia. हाँ. And there will be increased PTH secretion. PTH parathyroid hormone secretion, which is secondary hyperparathyroidism. ठीक है ना? Parathyroidism. पैराथायराइड हार्मोन बोल सकते हैं ना. फिर से बोलो, फिर से गलती कर रहे हो. किधर? What? Read it out. What is the full form? ये तो ऐसे लिखा है ना. 125. किसी ने एक भी नहीं जना नहीं बोलना है. 125 अब तक बोला है ना. Read it out. 125 what? Role of vitamin D receptor in gene expression. Loud, silent. VDR is a nuclear receptor. Ligand dependent transcription factor. Activated VDR forms a heterodimer with adenoid X receptors. Binds vitamin D response elements in target genes. Regulates TRPV6, calvinin D and RNKL. ठीक है, अब बोलो फ्रीडम क्या है, या फिर देख के आके बोलोगे मेरे को? देख के आना है ना. मैं बोल सकता हूँ अभी, मगर मैं बोलूँगा रेडीमेड आंसर दूंगा. यू विल नेवर स्टडी ना. खुद के मेहनत करके आओ, याद रहेगा. हमारे साथ लोगों ने भी ऐसे ही किया. आंसर रेडीमेड नहीं देते थे, आंसर ढूंढ के लाओ. अगर गलती हुआ तो बोलो. 28 weeks preterm neonate presents with jaundice, pallor, anemia. Laboratory tests reveal elevated reticulocyte count, low hemoglobin, and increased level of erythrocyte osmotic fragility. The physician suspect vitamin E deficiency. ठीक है ना, आंसर तो दे ही दिया है ना. सिर्फ हमको याद रखना है क्या क्या वर्ड बोला है. क्या समझ में है? बायोकेमिकल बेसिस ऑफ आरबीसी प्रोटेक्शन. RBC membrane contain what? Polyunsaturated fatty acids, which are prone to oxidative stress. Vitamin E prevents the oxidation of these lipids. These lipids means the PUFAs, na? Maintaining membrane stability, shape and etc. Preventing hemolysis. टूटने नहीं देते ना. Susceptible in preterm neonates. Limited placental transfer for vitamin A. उनको limited ही दिया. माँ से तो उसको limited मिलता है ना.
as it occurs mostly in the third trimester. थर्ड ट्राइमेस्टर कब से शुरू होता है बोलो? After 3 months. अरे फिर से मंथ, मुझे वीक्स में चाहिए। 12 weeks. 12 weeks. 14 weeks के बाद 12 to 14 weeks के बाद नहीं, 24 weeks बाद। 24 weeks के बाद 24 Sure. थर्ड ट्राइमेस्टर 6 months तो उसका कितना वीक था उस बच्चे का? 24 to 26 weeks अरे उस बच्चे का कितना क्वेश्चन में कितना? 24 weeks 24 या 28 वीक्स? 28 वीक्स है। First trimester ना 6 months 24 क्वेश्चन डिसोरिएंटेड रहता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में के पढ़ा कि नहीं उसने? बाद है ना। तो एज इट occurs मोस्टली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, लो हेपेटिक स्टोर्स, रिड्यूस अल्फा डी एक्टिविटी, हाई ऑक्सीजन एक्सपोजर इन न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स, आईसीयूज फॉर यूनिट्स, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि हाई ऑक्सीजन एक्सपोजर, हाई ऑक्सीजन भी अच्छा नहीं है, 100% ऑक्सीजन भी अच्छा नहीं है, फ्री रेडिकल्स बनाते हैं जो के इफेक्ट करते हैं ना। तो कोई भी चीज 100% अच्छा नहीं है ना। ये बायोकेमिस्ट्री में ये चैप्टर है, आप लोग पढ़ाएगा क्या? रेडिकल चैप्टर है कि ऑक्सीडेटिव चैप्टर एक है, तो उसको ज़्यादा नहीं दे सकते ना, एक लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन देंगे जिससे कि उसको क्या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना पड़े। लिख लो, इजी है भाई, उफा है, उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में नहीं देना है, उसके लिए विटामिन लगेगा। वहाँ से जो ट्रांसफर होता है वो कभी कभी एडुकेट नहीं होता या फिर एक सर्टेन टाइम तक ही यूजफुल होता है, उसके बाद तो खुद को बनाना पड़ता है ना। अगर स्टोर पे नहीं है बेबी की, या फिर हमने उसको बच्चे को निकू में डाला है जहाँ उसको 100% ऑक्सीजन दे रहा है, वो भी उसके लिए अच्छा नहीं है। तो माइनर चीज़ें हैं जो हमको याद रखना है। लिख लिया मैडम? खत्म? गौड़े मैडम खत्म करो। थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं क्या दोस्त लोग पेपर? किससे ले रहे पेपर? किससे ले रहे पेपर? इससे उससे मांग के। तो क्लास का टाइम है जब, तो बैग लेने आना चाहिए ना, इतना स्मार्टनेस तो होना चाहिए। क्या भाई मिस त्रिपुरा? अरे मिस्टर त्रिपुरा, ठीक है लिखो, पता कोई भी ना। A 35-year-old male with a history of chronic fat malabsorption secondary to cystic fibrosis present with progressive difficulty in walking, loss of proprioception and absent deep tendon reflexes. Neurological examination reveals ataxia, dysarthria and positive rhomboxide. फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ाया गया क्या ये सब? प्रोप्रियोसेप्शन, लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, सीएनएस पढ़ाया गया क्या अब तक? नहीं ना, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जब सीएनएस पढ़ोगे ना तो अच्छे से मालूम चलेगा क्या है ये लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। और या फिर फिजियोलॉजी में पढ़ाया गया क्या सीएनएस अब तक? नहीं, ठीक है, नहीं तो नहीं समझोगे ना। एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, ठीक है ना, ये अभी के लिए थोड़ा हैवी है, उधर पढ़ने के बाद इजी हो जाएगा। बायोकेमिकल रोल इन न्यूरोनल फंक्शन, विटामिन ई acts as a lipid soluble antioxidant protecting the neuronal membrane rich in polyunsaturated fatty acids from what? Oxidative damage. Its deficiency leads to increased oxidative stress, damaging neuronal myelin sheaths, causing demyelination and axonal degeneration, leading to neurological symptoms. Mechanism of oxidative production. Vitamin E donates an electron to reactive oxygen species ROS, neutralizing lipid peroxyl radicals in membrane. This prevents the chain reaction of lipid peroxidation and maintains what? Membrane integrity. The oxidized tocopherol radical is regenerated by vitamin C और तो क्या क्या चीजें देखेंगे? बायोकेमिकल मार्कर फॉर डायग्नोसिस क्या होगा? सीरम अल्फा टोकोफेरॉल लेवल्स व्हिच विल बी लेस देन 5, एरिथ्रोसाइट हेमोलाइसिस टेस्ट, देन सीरम सब बोलो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना, सब बोलो सब, ठीक है, तेरा आवाज उसमें गूंज रहा है, अच्छा ठीक है, बोल रहा है। प्लाज्मा विटामिन E2 लिपिड रेशियो विल बी लेस देन, याद रहना चाहिए, 4 ही तो चीजें है ना, 4 ही चीजें, सिर्फ ज़्यादा नहीं है, जितना कम हो सके इतने में लिखा है, शॉर्ट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। एविएटर का क्या हो सकता है, किसी का आइडिया है क्या?
बोलना भाई, ई से क्या हो सकता है कि नहीं? तो वी और ई से क्या हो सकता है? हाँ, ए से एटेक्सिया हो सकते हैं क्या? एटेक्सिया विथ इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, याद रखना अभी ये फुल फॉर्म है, डिसेबिलिटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, मेलाना क्या है? आप बोलो क्वेश्चन को, डिस्कलरेशन ऑफ व्हाट? मेलाना, मेलाना को बोल रहे तू? नहीं भाई, ठीक से बोलो, मेलाना क्या है? ठीक है भाई, पीटीआईएनआर क्या है भाई? फुल फॉर्म बोलो, पढ़ना है। मेलाना का फुल फॉर्म क्या? मेलाना क्या है मुझे आके बोलना है। ब्रूजिंग तो मैंने बोल दिया ना, मेलाना अभी आके बोलना है भाई। गूगल मत कर। पीटीआईएनआर का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट प्रोलॉन्ग पीटीआईएनआर, फुल फॉर्म भी तो जानना चाहिए ना। देख लेबोरेटरी फाइंडिंग शोज प्रोलॉन्ग पीटीआईएनआर, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट एंड लो सीरम एल्बुमिन। तो पीटी क्या है भाई? पीटी टीचर है क्या ये? नहीं ना। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, आईएनआर बोल, नहीं आता। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, तो क्या देखेंगे? 55 ईयर ओल्ड है विथ सिरोसिस पेशेंट, उसका लीवर गया, खराब हो चुका है, प्रेजेंट विथ इजी ब्रूजिंग, टच करने से ही उसका ब्रूज हो रहा है, स्किन के अंदर ब्लड जमा हो रहा है। मेलेना आपको बोलना है क्या है? वो मैं छोड़ रहा हूँ। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर माइनर ट्रॉमा, उसका नाखून वगैरह कट रहे हैं ना, थोड़ा कट रहे, ब्लड जब निकलता है उसका बंद ही नहीं होता, बहुत सारा ब्लड निकलता है ना, उसके चोट लग गई, उसका ब्लीडिंग बंद ही नहीं होता, तो उसका क्या बोलेंगे? प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर माइनर ट्रॉमा, छोटी सी ट्रॉमा से। लेबोरेटरी फाइंडिंग शोज प्रोलॉन्ग पीटी प्रोथ्रोम्बिन एंड इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो ना, पीटीआईएनआर बढ़ा हुआ है, मगर नॉर्मल प्लेटलेट काउंट क्या है? प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, मगर सीरम एल्बुमिन लो है। तो कौन सा विटामिन हो सकता है भाई? लिखा है भाई, इजी है। The liver synthesizes vitamin K dependent protein factors. Some protein factors are dependent on vitamin K, which is produced by liver. In cirrhosis, decreased hepatic function leads to reduced production of these factors, these protein factors. Additionally, biliary obstruction due to the liver diseases, impaired fat soluble vitamin absorption, worsening the disease. Disease means the deficiency. लिख लो फास्ट। डीआईसी का फुल फॉर्म थोड़ी देर पहले बोला था, लिखा है उधर, डिसेबिलिटेड इंटरवास्कुलर क्या? ठीक से पढ़ा है, मैं गलत बोल रहा हूँ कि ठीक? ठीक है ना, डिसेबिलिटेड इंटरवास्कुलर कोआगुलेशन, लिख लो भाई, पढ़ो। हाँ, प्रोलॉन्ग पीटीआईएनआर क्वेश्चन में था। उसके बाद नॉर्मल, हाँ नॉर्मल, तो दो चीजें मिल गई, प्रोलॉन्ग पीटी एंड आईएनआर, प्रोथ्रोम्बिन एंड इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, एंड देयर इज आल्सो नॉर्मल लेवल ऑफ प्लेटलेट। फाइब्रिनोजन नहीं दिया, अगले टाइम प्लेटलेट की जगह फाइब्रिनोजन दे देंगे, या फिर दोनों, या फिर भी नहीं भी, ठीक है। डीआईसी बोल, डीआईसी का फुल फॉर्म बोल। बोला था ना पहले, क्लोटिंग फैक्टर्स है कुछ जो विटामिन के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या क्या है लिख कर रख दो, 2, 7, 9। तो क्या कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे हम? दोनों में ही देखो क्या कॉमन है, कॉमन है कि नहीं? कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोलॉन्ग पीटी कॉमन है, मगर एपीटीडी देखेंगे तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या चीजें देंगे? 3, पीटी, आईएनआर और इधर से बहुत कुछ मालूम चल गया है। उसके बाद प्लेटलेट काउंट देखेंगे सीबीसी में क्या आ रहा है, ठीक है ना, उससे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये प्रेजेंस ऑफ डी डायमर एंड फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट का भी शायद डी भी चाहिए होगा ना, उससे भी नहीं करके भी हम कर सकते हैं। Diagnostic test for vitamin K deficiency, reduced activity of vitamin K dependent factors like 2, 7, 9 and 10 confirms deficiency. Prolonged PT correction or rapid PT correction after vitamin K administration. PT जो बड़ा हुआ है उस शॉर्ट टाइम में ठीक हो जाएगा अगर हम लोगों ने विटामिन के का डोज दे दिया उसको। ये भी सजेस्ट करेगा कि विटामिन के का डिफिशियंसी है कि नहीं है। Factor 7 sensitivity to vitamin K deficiency. Factor 7 is dependent on vitamin K ना,
shortest half life, that is 4 to 6 hours among the vitamin K dependent factors. Affected fast, leading to prolonged PTINR before immunity becomes abnormal. Treatment options and biochemistry. Vitamin K, K1 we can give, fresh frozen plasma, that is FFP we can give, prothrombin complex factor we can give. FFP has to be given in, हम ये एक्स्ट्रा है, FFP जब हम लाते हैं ना ब्लड बैंक से जल्दी जल्दी देना होता है फ्लाश में, वो मिल भी जाता है, ठीक है ना. वेरी कॉमन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज वेरी कॉमनली यूज्ड. विटामिन के का ये डोज हम ये को भी देते हैं, न्यूबॉर्न को भी देते हैं अकॉर्डिंग टू द वेट एंड अदर थिंग्स. टू प्रिवेंट व्हाट, यूनिट्स को क्यों देते हैं विटामिन के? डोजेस दे देते, बच्चा होने के बाद एक दे देते हैं. पता करके आओ, नेक्स्ट क्लास में बोलना है मुझे. विटामिन के का इंजेक्शन क्यों देते हैं न्यूनेट्स को? जो बच्चा जन्म लिया है उसको क्यों एक शॉट देते हैं विटामिन के का?